السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو کے مشہور افسانے بھابھی جان کا دوسرا چیپٹر پڑھنے والے ہیں، جس کا مصنف سہیل عظیم آبادی ہے۔ جی ہاں دوستو، سہیل عظیم آبادی افسانہ بھابھی جان کا مصنف ہے۔ اس کے متعلق ہم نے کل ویڈیوز میں اس چیپٹر کا خلاصہ کیا، یعنی بھابھی جان کا خلاصہ کیا، اور آج اسی چیپٹر کا آبجیکٹو لے کر آئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس افسانے کے نہایت اہم یعنی VVI کوسچن بہت آسان انداز میں سمجھیں گے، جو امتحان میں بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ایک بھی سوال چھوٹنے نہ پائے۔ انشاءاللہ اگر آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں افسانہ بھابھی جان کے متعلق پوچھے جانے والے سوال۔ سوال نمبر 1 میں ہے، آپ کے نصاب میں شامل بھابھی جان، آپ کے نصاب میں شامل بھابھی جان کا تعلق کس نثر سے ہے؟ تو یاد رہے اس کا جواب ہوگا افسانہ۔ کیا ہوگا؟ افسانہ۔ سوال نمبر 1 میں کیا ہے؟ آپ کے نصاب میں شامل بھابھی جان کا تعلق کس نثر سے ہے؟ تو جواب ہوگا افسانہ۔ اگلا دوسرا سوال ہے کہ افسانہ بھابھی جان کا مصنف کون ہے؟ افسانہ بھابھی جان کا مصنف یعنی لیکھک کون ہے؟ تو یاد رہے کہ سہیل عظیم آبادی ہے۔ کون ہے؟ سہیل عظیم آبادی ہے۔ کون ہے؟ سہیل عظیم آبادی ہے۔ جی ہاں دوستو، افسانہ بھابھی جان کا مصنف سہیل عظیم آبادی ہے۔ اگر آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور میرے ساتھ کہیں گے، بولیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہوتا چلا جائے گا، رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آئیے تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال میں ہے، افسانہ بھابھی جان کس کی تصنیف ہے؟ افسانہ بھابھی جان کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے سہیل عظیم آبادی۔ کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی۔ جی ہاں، افسانہ بھابھی جان کا تصنیف، افسانہ بھابھی جان سہیل عظیم آبادی کی لکھی ہوئی ایک تصنیف ہے جس کا تعلق افسانہ سے ہے۔ کلیئر؟ سمجھ رہے ہیں؟ آگے چلتے ہیں چوتھے نمبر میں۔ تو چوتھا نمبر کا سوال ہے، رقیہ بھابھی جان، رقیہ بھابھی جان کس افسانہ کا کردار ہے؟ یعنی رقیہ بھابھی کس افسانہ کا کردار ہے؟ رقیہ بھابھی کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو یاد رہے کہ افسانہ بھابھی جان کا کردار ہے۔ کس کا ہے؟ بھابھی جان کا۔ 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 جی، پوچھا یہ جا رہا رقیہ بھابھی کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو جواب ہوگا بھابھی جان کا۔ کس افسانہ کا؟ بھابھی جان کا۔ جی ہاں دوستو، آپ کو یاد ہوتا جائے گا۔ پانچواں نمبر سوال ہے، عنوان میں بھابھی جان، عنوان بھابھی جان، عنوان بھابھی جان کس کا لکھا ہوا ہے؟ عنوان بھابھی جان کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا سہیل عظیم آبادی کا۔ کس کا ہوگا؟ سہیل عظیم آبادی کا۔ سوال کیا تھا؟ عنوان بھابھی جان، عنوان بھابھی جان کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو جواب ہے سہیل عظیم آبادی کا۔ سہیل عظیم آبادی کا۔ اگلا سوال ہے چھٹا نمبر میں، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمان ہے۔ کیا ہے؟ سید مجیب الرحمان ہے۔ کیا ہے؟ سید مجیب الرحمان ہے۔ جو کہ دوسرا سوال اسی سے بنتا ہے، سہیل عظیم آبادی کا بچپن کا کیا نام ہے؟ یعنی سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا کیا نام ہے؟ تو جواب وہی ہوگا جو یہاں بتایا جا رہا، یعنی سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمان تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے کوشچن میں تھوڑا سا تبدیل کرتا، آنسر وہی رہتا۔ کوشچن یہ ہو جاتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا کیا نام ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ سید مجیب الرحمان۔ کیا ہوگا؟ سید مجیب الرحمان۔
अगला सवाल है 7 नंबर में, सुहेल आजिम आबादी का तखल्लुस क्या है। जी, तखल्लुस के बारे में मैं पहले बता दिया हूं पिछले वीडियो में कि तखल्लुस उस नज्म को कहते हैं जिसमें शायर अपने शेर के आखिरी मक्ता में जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसी को तखल्लुस कहते हैं। जी, पूछा जा रहा है सुहेल आजिम आबादी का तखल्लुस क्या है, तो जवाब होगा सोहेल। क्या होगा? सोहेल। क्या होगा? सोहेल। क्या होगा? सोहेल। जी, सुहेल आजिम आबादी का तखल्लुस सोहेल है, जबकि सुहेल आजिम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, लेकिन तखल्लुस में सोहेल है। क्या है? सोहेल है। जी, अगला सवाल है 8 नंबर का, सुहेल आजिम आबादी की पैदाइश कब हुई। सुहेल आजिम आबादी की पैदाइश कब हुई? जवाब है 1911 में हुई। जी हाँ, कब हुई? 1911 में हुई। कब हुई? 1911 में हुई। सुहेल आजिम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो जवाब क्या होगा? 1911 में हुई। कब हुई? 1911 में हुई। जी, अगला सवाल है 9 नंबर में, सुहेल आजिम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई। सुहेल आजिम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? इससे पहले क्या पूछा? सुहेल आजिम आबादी की पैदाइश कब हुई, तो जवाब क्या दिए? 1911 में। और अभी क्या पूछा जा रहा? सुहेल आजिम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, यानी जगह के बारे में पूछा जा रहा है, तो जवाब क्या आएगा? पटना। क्या आएगा? पटना। यानी सुहेल आजिम आबादी की पैदाइश पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, याद होता जा रहा, बहुत आसानी अंदाज में याद कराने की कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाह आपको याद भी होता जाएगा। जी, अगला सवाल है 10 नंबर में, सुहेल आजिम आबादी के बचपन का क्या नाम था। जो मैंने इससे पहले पूछा, सुहेल आजिम आबादी के बचपन का क्या नाम था, जवाब होगा सैयद मुजीबुर रहमान। क्या होगा? सैयद मुजीबुर रहमान। क्या होगा? सैयद मुजीबुर रहमान। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं 11वां चैप्टर की तरफ, सॉरी 11 नंबर की तरफ। यानी कि 11 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? सवाल है 11 नंबर में, निसाब में शामिल अफसाना, निसाब में शामिल अफसाना भाभीजान किसकी तखलीक है। किसकी तखलीक है? जवाब होगा सुहेल आजिम आबादी की। जी, 11 नंबर का सवाल है, निसाब में शामिल अफसाना भाभीजान किसकी तखलीक है। जवाब क्या होगा? सुहेल आजिम आबादी की। क्यों? इसलिए कि सुहेल आजिम आबादी ने अफसाना भाभीजान को लिखा है, यानी अफसाना भाभीजान जो है सुहेल आजिम आबादी के हाथों से लिखे हुए एक तसनीफ है, जो हम कहेंगे कि अफसाना भाभीजान सुहेल आजिम आबादी की तखलीक है। पूछा क्या गया? निसाब में शामिल अफसाना भाभीजान किसकी तखलीक है, तो जवाब क्या देंगे प्यारे बच्चों? सुहेल आजिम आबादी। जी, अगला सवाल है 12 नंबर में, सुहेल आजिम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है। जी, सुहेल आजिम आबादी जो अफसाना लिखे थे, उन अफसानों में से पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था, तो याद रहे चार चेहरे। क्या था? चार चेहरे। क्या था? चार चेहरे। क्या था? चार चेहरे। जी, सुहेल आजिम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम चार चेहरे था। क्या था? चार चेहरे था। और अगला सवाल है 13 नंबर में, सुहेल आजिम आबादी के अफसानवी मजमूए। जी, सुहेल आजिम आबादी के अफसानवी मजमूए चार चेहरे। क्या? चार चेहरे कब शाये हुआ था? 1934 में। कब शाये हुआ था? 1934 में। याद रहे कि सुहेल आजिम आबादी का पहला अफसानवी मजमूआ चार चेहरे है, जिसकी अशात कब हुई थी? 1934 में। इसलिए सवाल बनता है कि सुहेल आजिम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है, तो जवाब देंगे चार चेहरे। पूछा जाएगा सुहेल आजिम आबादी का पहला अफसानवी मजमूआ चार चेहरे कब शाये हुई थी, तो जवाब होगा 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। अगला सवाल है 14 नंबर में, सुहेल आजिम आबादी का कौन सा अफसाना, जी हाँ, सुहेल आजिम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। यानी सुहेल आजिम आबादी तो अफसाने बहुत लिखे हैं, लेकिन उन अफसानों में से वो कौन सा अफसाना है जो आपके बुक में लिखा हुआ है, जिस किताब को आप पढ़ेंगे और उस किताब की तैयारी करेंगे तब जाकर के एग्जाम देंगे, उसी किताब के रिलेटेड पूछे जा रहे हैं कि सुहेल आजिम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो दोस्तों क्या होगा? भाभी जान। क्या होगा? भाभी जान। क्या होगा?
بھابھی جان. جی اگلا سوال ہے 15 نمبر میں. سہیل عظیم آبادی کے سہیل عظیم آبادی کتنے سال کے تھے؟ جی سہیل عظیم آبادی کتنے سال کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا؟ جی سہیل عظیم آبادی کتنے سال کے تھے، یعنی وہ کتنے عمر کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا؟ تو یاد رہے دوستو، سہیل عظیم آبادی کا 1 سال تھا. کتنا تھا؟ 1 سال تھا. یعنی سہیل عظیم آبادی 1 سال کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کتنے سال کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا؟ جواب کیا ہوگا دوستو؟ 1 سال کے. کتنے سال کے تھے؟ 1 سال کے تھے. اگلا سوال ہے 16 نمبر میں. سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیا؟ سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ جواب کیا ہوگا؟ زمیندارانہ. کیا جواب ہوگا؟ زمیندارانہ. کیا جواب ہوگا؟ زمیندارانہ. کیا جواب ہوگا؟ زمیندارانہ. یاد رہے بچوں، ہم نے جو آپ کو آبجیکٹو بتا رہا ہوں یہ تمام کتابوں میں تلاش کر لیجئے گا. ان تمام کتابوں سے، یعنی بہت ساری کتابوں سے نچوڑ کر کے میں نے آبجیکٹو کی شکل میں آپ کو بتایا، اور امید ہے کہ اس سے باہر ایک بھی سوال نہیں جائے گا. اس لیے آپ دھیان سے پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ جب آپ ایگزام دینے جائیں گے آپ کو مزہ آئے گا اور سب سے پہلے لکھ کر کے بیٹھے رہیں گے. آئیے غور کرتے ہیں. 16 نمبر میں کیا پوچھا گیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ زمیندارانہ. کیا جواب دیں گے؟ زمیندارانہ. اگلا سوال ہے 17 نمبر میں. سہیل عظیم آبادی کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ سہیل عظیم آبادی کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے. کس خاندان سے؟ زمیندار خاندان سے. کس خاندان سے؟ زمیندار خاندان سے. اگلا سوال ہے 18واں نمبر میں. کتنے نمبر میں؟ 18واں نمبر میں. افسانوی مجموعہ علاؤ کے مصنف کون ہے؟ جی کیا پوچھا گیا؟ افسانوی مجموعہ علاؤ کے مصنف کون ہے؟ تو یاد رہے سہیل عظیم آبادی. میں نے خلاصے میں بتایا تھا نا کہ سہیل عظیم آبادی کا 3 افسانوی مجموعہ ہے. ایک 4 چہرے، دوسرا علاؤ، تیسرا آدمی کے روپ. تو یاد رہے وہی دوسرا سوال پوچھ رہا ہے. سہیل عظیم آبادی افسانوی مجموعہ علاؤ کے مصنف کون ہیں؟ کیا پوچھا گیا؟ افسانوی مجموعہ علاؤ کے مصنف کون ہیں؟ تو کیا جواب آئے گا؟ سہیل عظیم آبادی. کیا آئے گا؟ سہیل عظیم آبادی. اگلا سوال ہے 19 نمبر میں. افسانوی مجموعہ آدمی کے روپ. افسانوی مجموعہ آدمی کے روپ کے مصنف کون ہیں؟ جی افسانوی مجموعہ آدمی کے روپ کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا سہیل عظیم آبادی. کیوں؟ اس لیے کہ 4 چہرے، علاؤ اور آدمی کے روپ یہ تینوں افسانوی مجموعہ ہے، اور ان تینوں کو لکھنے والے کون ہیں؟ یہی سہیل عظیم آبادی. کون ہے؟ سہیل عظیم آبادی. آگے چلتے ہیں 20 نمبر میں. 20 نمبر میں جو کہ خلاصہ میں بتا دیا گیا تھا اس سے پہلے والے ویڈیو میں. اگر کوئی پہلے والے ویڈیو کو نہیں دیکھے ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس خلاصہ کو اگر سنیں گے تو آپ تمام کوشچن کو حل کرنا آسانی سے جان جائیں گے. اس لیے آگے چلتے ہیں 20 نمبر میں کہ سہیل عظیم آبادی کے ایک ناول کا کیا نام ہے؟ سہیل عظیم آبادی کے ایک ناول کا کیا نام ہے؟ یعنی پوچھا جا رہا ہے سہیل عظیم آبادی کے ایک ناول کا نام بتاؤ. کیا بتاؤ؟ نام بتاؤ. جواب کیا ہوگا؟ بے جڑ کے پودے. 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 یعنی سہیل عظیم آبادی نے 3 افسانوی مجموعے لکھے ہیں جو مشہور ہیں، اور اس کے بعد ایک ناول لکھے جسے ہم بے جڑ کے پودے کے نام سے جانتے ہیں. یاد رہے سہیل عظیم آبادی کا لکھا ہوا ایک ناول جس کا نام بے جڑ کے پودے ہے. کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے. 20 کوشچن حل ہوا. اب چلتے ہیں ہم 21واں کوشچن کے طرف. تو یاد رہے 21واں سوال کیا کر رہے ہیں؟ 21 نمبر کا سوال ہے ان میں سے سہیل عظیم آبادی کا مجموعہ کیا ہوگا؟ مجموعہ کیا ہوگا؟ مجموعہ کیا ہوگا؟
मजमुआ, इनमें से सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है? जवाब होगा आदमी के रूप। क्या होगा? आदमी के रूप। इनमें से सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है? आदमी के रूप। क्यों? इसलिए कि आदमी के रूप का मुसन्निफ कौन है? सोहेल अजीम आबादी। इसलिए इनमें से सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है? जब ये क्वेश्चन पूछे तो जवाब हम देंगे आदमी के रूप। क्या होगा? आदमी के रूप। आगे चलते हैं 22 नंबर सवाल के तरफ। इनमें से कौन अफसानवी मजमुआ सोहेल अजीम आबादी का नहीं है? क्या है? नहीं है। क्या है? नहीं है। यानी पूछा जा रहा है इनमें से कौन अफसानवी मजमुआ सोहेल अजीम आबादी का नहीं है? तो याद रहे दर्पण। क्या होगा? दर्पण। क्या होगा? दर्पण। क्या होगा? दर्पण। जी याद रहे सोहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ जो अफसानवी मजमुआ नहीं है उसका नाम है दर्पण। इसलिए पूछा जा रहा है इनमें से कौन अफसानवी मजमुआ सोहेल अजीम आबादी का नहीं है? तो जवाब देंगे हम दर्पण। क्या देंगे? दर्पण। अगला सवाल 23 नंबर का। सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार का इजरा किया? यानी पूछा जाएगा सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार का इजरा किया, या इस तरीके से सवाल करेगा सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार निकाला? जवाब क्या देंगे? साथी। क्या देंगे दोस्तों? साथी। जी हाँ, सोहेल अजीम आबादी ने एक रोजनामा अखबार निकाला था जिसका नाम था साथी। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? साथी। क्या होगा? साथी। जी सोहेल अजीम आबादी का एक रोजनामा अखबार है, उसका क्या नाम है? साथी। याद रहे। आगे चलते हैं 24 नंबर में। उर्दू का पहला अफसाना। उर्दू का पहला अफसाना। खुलासा में बता दिया कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना क्या है? नसीर और खदीजा। उसी के बारे में पूछा जा रहा। उर्दू का पहला अफसाना कौन है? नसीर और खदीजा। कौन है? नसीर और खदीजा। कौन है? नसीर और खदीजा। 25 नंबर में नसीर और खदीजा के मुसन्निफ के बारे में पूछा जा रहा कि उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? यानी उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा है, तो इसको लिखने वाले कौन हैं? तो जवाब होगा राशिदुल खैरी। क्या होगा? राशिदुल खैरी। राशिदुल खैरी। जी उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा, और उर्दू का सबसे पहला अफसाना निगार राशिदुल खैरी है। जी अगला पूछा जाएगा नसीर और खदीजा के मुतालिक 26 नंबर में अफसाना नसीर और खदीजा की अशाअत कब हुई थी? यानी अफसाना नसीर और खदीजा की अशाअत कब हुई थी? तो जवाब में आएगा 1903 में। क्या आएगा? 1903 में। क्या आएगा? 1903 में। क्या आएगा? 1903 में। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं 27 नंबर की तरफ। अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? तो वही राशिदुल खैरी। जो आगे पूछा गया उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? तो राशिदुल खैरी। बस क्वेश्चन के बदल दिया, अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? जवाब होगा राशिदुल खैरी। इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। इस साल पूछ लेगा सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो जवाब दो तरह का है, या तो नानिहाल या तो शाहपुर भदौल पटना। अगला सवाल है 29 नंबर में। सोहेल अजीम आबादी की परवरिश कहाँ हुई थी? जवाब क्या होगा? नानिहाल में। जवाब क्या होगा? नानिहाल में। सोहेल अजीम आबादी की परवरिश कहाँ हुई थी? नानिहाल में। अगला सवाल है 30 नंबर में। सोहेल अजीम आबादी किस वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके थे? तो याद रहे इफ्तादे तबाह की वजह से। किस वजह से? इफ्तादे तबाह की वजह से। यानी वो अपनी इब्तिदाई तालीम एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में रह करके हासिल किया नानिहाल में, लेकिन आला तालीम हासिल करने के लिए वो बहुत जगह गए, जैसे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, कलकत्ता जैसे मराकिज में रहे। कि सोहेल अजीम आबादी किस वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके? तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? इफ्तादे तबाह की वजह से। किस वजह से? इफ्तादे तबाह की वजह से। सोहेल अजीम आबादी किस वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके? बोलो बोलो बताओ। इफ्तादे तबाह की वजह से। किस वजह से? इफ्तादे तबाह की वजह से। अगला सवाल है 31 नंबर में। जी याद रहे 31 नंबर का सवाल, सोहेल अजीम आबादी किस नाम से मशहूर हुए? क्या है? सोहेल अजीम आबादी
किस नाम से मशहूर हुए? सोहेल अजीम आबादी किस नाम से मशहूर हुए? जवाब क्या होगा? सोहेल अजीम आबादी के नाम से। किस नाम से? सोहेल अजीम आबादी के नाम से। किस नाम से? सोहेल अजीम आबादी के नाम से। सोहेल अजीम आबादी मशहूर हुए। 32 नंबर का सवाल है, सोहेल अजीम आबादी इब्तिदाई तालीम किसकी सरपरस्ती में रहकर तालीम हासिल किया? तो जवाब होगा एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में रहकर, यानी उस्ताद के सरपरस्ती में रह करके वो अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल किया। सवाल है 33 नंबर में, सोहेल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ था? जवाब होगा शाहपुर भदौल पटना। क्या होगा? शाहपुर भदौल पटना। क्या होगा? शाहपुर भदौल पटना। जी अगला सवाल है 34 नंबर में, सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल किया? तो शाहपुर भदौल पटना। बताए थे ना, या तो नानिहाल या शाहपुर भदौल पटना। इसलिए दोनों को ध्यान में रखना है ताकि कंफ्यूज ना हो। जैसा आंसर होगा, जैसा जवाब देखेंगे वैसा टिक मारेंगे। यानी रिश्तेदार का जिक्र हो तो नानिहाल और जगह का जिक्र हो तो शाहपुर भदौल पटना। अगला सवाल है 35 नंबर में, सोहेल अजीम आबादी अपनी जिंदगी का आगाज किस शय से किया? यानी किस चीज से किया? तो जवाब क्या होगा? शायरी से। किससे? शायरी से। किससे? शायरी से। अगला सवाल है 36 नंबर में, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका क्या नाम है? अख्तर। उसका क्या नाम है? अख्तर। उसका क्या नाम है? अख्तर। और अगला सवाल है 38 नंबर में, 37 नंबर में, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो जवाब होगा देवर, क्योंकि रुकैया भाभी और अख्तर इन दोनों के बीच का रिश्ता जो था देवर भाभी का था। इसलिए सवाल जो पूछा जा रहा है रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था, तो जवाब क्या आएगा? देवर। क्या होगा? देवर। और अगला सवाल है 38 में, सोहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजमत की? यानी किस शोबे में मुलाजमत इख्तियार की? ऑल इंडिया रेडियो। जवाब में क्या होगा? ऑल इंडिया रेडियो। क्या होगा? ऑल इंडिया रेडियो। 39 नंबर का सवाल, सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? जी हाँ, 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। और अगला 40 नंबर का सवाल है, सोहेल अजीम आबादी जिंदगी भर किस शय में यानी किस चीज में मसरूफ रहे? जवाब क्या होगा? उर्दू की तरवीज व अशाअत में। उर्दू की तरवीज व अशाअत में। उर्दू की तरवीज व अशाअत में। अजीज बच्चों, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव मैंने खुलासा किया, आपको बताया। और इससे पहले अफसाना भाभी जान और सोहेल अजीम आबादी के मुतालिक खुलासा किया। जो इस वीडियो को नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और आज का जो क्लास हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का हुआ है, इससे पहले उसका खुलासा हुआ था। इसलिए याद रहे कि अगर आप खुलासा को सही तरीके से देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको याद पहले से हो जाएगा, अभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में देख लें। और आज ऑब्जेक्टिव उसी के मुतालिक दिए हैं। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आज मुकम्मल किया, लेकिन बहुत ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो बचा हुआ है, बोर्ड पे कम जगह होने की वजह से नहीं लिख पाए। लेकिन इंशाअल्लाह कल इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा, सवाल जवाब होगा, उसको इंशाअल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। और हमारी यही कोशिश रहती है कि आप कहीं से भी कंफ्यूज ना हो, कहीं से भी ना फंसें, तालीम ऐसा हासिल करें कि हर जगह का जवाब देने वाले बने, हर सवाल का जवाब देने वाले बने। ऐसा ना हो कि हम 2-4-10 क्वेश्चन को याद कर लिए, बाकी को छोड़ दिए और एग्जाम में सवाल बदल गया और हम कंफ्यूज हो गए। नहीं दोस्तों, नहीं, आपको ऐसा तैयारी कराएंगे कि आपकी तैयारी इम्तिहान में रंग लाएगी। आपकी तैयारी इम्तिहान में रंग लाएगी इंशाअल्लाह। आप जब इम्तिहान देंगे तो आपको लगेगा कि वाकई हमने तैयारी किया है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस क्लास को रोजाना करें और रोजाना देखें, और देखने के साथ साथ उसको रिवीजन करें। क्योंकि कहने वालों ने क्या खूब कहा कि पढ़ो थोड़ा ही सही, पढ़ो थोड़ा ही सही, लेकिन रिवीजन लगातार होनी चाहिए। लेकिन रिवीजन लगातार होनी चाहिए। अगर आपकी रिवीजन लगातार रहेगी तो आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। मुझे उम्मीद है कि आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अजीज बच्चों, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रिवीजन लगातार करना, ताकि आपकी कामयाबी आपके मंजिल हो। इसलिए बच्चों, इस पर ध्यान दो।